So hello guys, welcome back to your YouTube channel The Bankers. Today I'm going to attempt live mock of SPA clerk prelims. So let's get started. Let's attempt the last mock. 18th लगाते हैं. The renowned chef was known for his dish using only the finest local ingredients to dash a truly unique dining experience. The renowned chef was known for his dish, for his flamboyance, the finest local ingredients to dash, to dilute a truly unique blend, to create a craft. What it his mastery using balloon. Mastery is the better word as to design it. The politician's speech was filled with the way, promises and dash and specification ने platitudes, insights, innovation, the solution तीनों से कोई ना platitudes हो सकता है. Doing little to dash SOH ठीक है. The sudden dash of the on the cruises. The sudden dash of led to period of great uncertainty. Mitigation नहीं होगा, decline नहीं होगा, cessation नहीं होगा, resumption नहीं होगा, onset होगा. Forcing many businesses to reconsider their long-term planning. Despite the fear storm, the old lighthouse is still dash. Weekly नहीं शुक्ली street fast होगा, बाकी तो भी नहीं बैठ रहा. Silent testament to its dash construction is what was in the future. The company's new policy was designed to dash employee engagement, was designed to dash bolster हो सकता है, reinforce हो सकता है. But it had the unintended effect of dash moral instinct, diminishing moral instinct, boosting, diminishing आएगा, भी यहाँ contrast निकल रहा है. इसमें क्या है आपको फाइंड एरर वाला बताना. His unwavering determination and profound dedication to his craft ultimately enabled him to overcome forbidden obstacles and achieve unparalleled नहीं आएगा, unparalleled आएगा केवल, unparalleled success in his chosen way and achieve parallel success. आई थिंक डी ही होना चाहिए. अनपैरेलल्ड तो खुद में एक एडजेक्टिव है. अनपैरेलल्ड ये होना चाहिए. The archaeological team discovered an ancient artifact which they believed to have belonged to civilization that flourished more than 2000 years ago. More than 2000 years ago. The archaeological team discovered an ancient artifact which they believed to have belonged to. अभी समझ नहीं आ रहा. He has been a prominent figure in the local community for over 2 decades, yet he never ceases to amaze his followers with his humility. The principal, along with his team of teachers, we met is Ivan. The old man, withered by years of labor, sat on the porch, his eyes cranes at the sight of children playing in the sunlit street. Playing in पता नहीं चल रहा जी. Bolt. The horse bolted. अभी तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, छोड़ते हैं. Spring. She tried to spring the trap carefully. He wound the spring inside the claw. ठीक लग रहा है. Incorrect बताना है. B तो नहीं है. She managed to spring a surprise party for her friend. The fountain has a natural spring. B और D तो सही है. A और C में से कोई होगा. She tried to spring the trap carefully. She managed to spring a surprise party for her. नहीं समझ आया. Stern. The teacher had a stern expression while giving instruction. ठीक लग रहा है. The ship's stern was damaged in the storm. He was stern in his refusal to accept prize. The child wore a stern hand to the party. D लग रहा है इसका तो. स्टर्न का मतलब तो वैसे हार्ड होता है. अब बाकी सेकंड क्या मतलब है नहीं समझ आ रहा. नहीं करेंगे. इस पर लेंगे नेगेटिव मार्किंग.
इसमें करेक्ट अल्टरनेट सेंटेंस द गवर्नमेंट डिसीजन टू रेज टैक्सेस हैज बीन heavily criticized by the opposition party which feels who feel लगा यहाँ पे who feels that it will worsen the economic situation who feel यहाँ who feels है the company's new policy has had a profound effect on employee morale causing a significant increase so ठीक लग रहा है effect had a profound effect इफेक्ट्स नहीं होगा profound effect हो सकते हैं the profound effect on employee morale that has caused a significant increase in productivity. Profound effect to employee morale profoundly affect had a profound effect on employee morale causing a significant increase that has caused ये तो ठीक ही लग रहा है इम्प्रूवमेंट लग रहा है इसका वैसे ये हो सकता है profound effect on profound effect on employee morale has had a profound effect on that has caused ये भी ठीक लग रहा है वैसे but need to need agree instantly. I think despite his lack of experience, he was given the job due to his great communication skills and his ability to work well under pressure and his ability to work well under pressure and his ability of working well to work well and his ability to work well under pressure. The new software is not only easy to use but also it saves a lot of time and resources, but also it's saving, but also a lot of time and resources are saved. But also saves a lot, but also saves a lot of time and resources. He went to the library to study, but the noise from the construction site made it impossible for him for Dash to be concentrated on his work. For him, but the construction site made it impossible for him to concentrate on his work. To concentrate for him to concentrate on his work. आरसी केजे भी है भाई पहले आरसी करेंगे इसलिए क्या लिखना है फर्स्ट पॉइंट दैट एन इकोसिस्टम इंग्लिश बॉटनिस्ट ऑर्थर टेंस लिखते हैं ऑर्थर टेंस कहाँ लिखना है इंग्लिश बॉटनिस्ट कहीं लिखा है ये मीन्स आ गया आंसर नॉट मेंशन्ड सीधा पहले पढ़ लेते हैं लॉन्ग आरसी मीडियम आरसी है बेसिकली जो इकोसिस्टम है इंग्लिश बॉटनिस्ट ऑर्थर टेंसली ने दिया था डिस्क्राइब करते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी को इन्फेक्ट कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ ही एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के साथ जैसे कि एयर वाटर सॉइल सनलाइट के साथ में एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाते हैं जो इंटीग्रेट वेब और रिलेशनशिप का एक इकोसिस्टम इंश्योर करता है स्टेबिलिटी और रेजिलियंस सो इस सिस्टम बहुत ग्रेटली एम्बेरी करते हैं साइज में स्मॉल बॉन्ड से बस फॉरेस्ट भी हो सकता है एंटायर ओशन भी हो सकता है इन डिफरेंसेस के बावजूद भी जितना भी पूरा इकोसिस्टम है फंडामेंटल कंपोनेंट शेयर करते हैं जैसे प्रोड्यूसर हैं कंज्यूमर्स हैं डिकम्पोजर्स हैं प्रोड्यूसर्स की प्लांट्स वगैरह हो गए क्रिएट करते हैं अपना खुद का खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंज्यूमर्स जैसे कि एनिमल्स वगैरह हो गई ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया फंगाई वगैरह जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और रिटर्न हो जाते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट में सॉइल में जो हेल्थ इकोसिस्टम की वो क्रिटिकल है सर्वाइवल के लिए सभी इनहेबिटेंट्स के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमन एक हेल्दी इकोसिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड करता है क्लीन एयर वाटर देता है फर्टाइल सॉइल देता है एग्रीकल्चर के लिए स्टेबल क्लाइमेट देता है हालांकि जो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि ये सब चीजें जो हैं वो इमेंस प्रेशर डाल रही है इंडेलिकेट सिस्टम में जो लॉस है सिंगल स्पीशीज का जिसको हम कीस्टोन स्पीशीज भी कहते हैं उसका एक कैसेटिंग इफेक्ट होता है डिस्टर्ब करता है एंटायर बैलेंस को इकोसिस्टम के अगर अंडरस्टैंड और प्रोटेक्ट करना है इन नेचुरल सिस्टम को न केवल एनवायरमेंटल कंसर्न है बल्कि एक हमारी खुद की फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है क्या मेंशन नहीं किया गया है कंपोनेंट प्रोड्यूसर से कंप्यूटर से नॉन लिविंग सराउंडिंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात यहाँ पर हो रही थी इकोसिस्टम प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स प्रोड्यूसर कंज्यूमर कीस्टोन और नॉन लिविंग सराउंडिंग्स एंड इन दोनों अगर यहाँ से चेक करा जाए तो कंपोनेंट्स फंडामेंटल कंपोनेंट्स तो ये हो गए
कीस्टोन स्पीशीज नहीं हो सकती क्योंकि नॉन लिविंग सराउंडिंग्स तो कॉम्पोनेंट में आते हैं. द पैसेज सजेस्ट दैट द साइज ऑफ एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज लार्ज लेकिन इट्स ऑलवेज स्मॉल इन irrelevant consistently the same नहीं a defining factor in its health. इकोसिस्टम का साइज वेरी करता है, very greatly exists from a small pond to a vast forest. Always large नहीं, always small नहीं, a defining factor in its health. हो सकता है irrelevant to its नहीं, consistently the same नहीं, a defining factor in its health. What is the primary role of decomposer? breakdown हो जाते हैं to provide food, to absorb sunlight, to maintain physical. What does the author mean keystone species? Keystone species जो होती है single species, loss of single species show illustrate how the loss of one species can harm the entire system. ये है. What is the synonym resilience है वो चीज यानी कि strengthen. Antonym inhabitants, residents, occupants, visitors, natives population. Residents तो है, ऑक्यूपेंट्स भी है, विजिटर्स नहीं है. विजिटर मतलब जो आई नेटिव्स वहीं के रहने वाले, पॉपुलेशन नहीं के रहने वाले विजिटर्स. द फॉलोइंग इज आफ्टर रीअरेंजमेंट. ये करते हैं 1 2 3 4 5. Promoting open conversation and reducing stigma can help individuals seek support when needed. Government and organizations are implementing programs to provide better mental health services. Promoting open conversation and reducing stigma can help individuals seek support when needed. हो सकता है प्रोसेसमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड बेटर मेंटल हेल्थ सर्विसेज नहीं हो लग रहा है. लास्ट का स्टेटमेंट लग रही है. मेंटल हेल्थ इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल वेलबीइंग येट इट इज ऑफन ओवरलुक. फर्स्ट हो सकता है स्ट्रेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर कॉमन इश्यूज दैट अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस. हो सकता नहीं हो सकता ये बीच का सा लग रहा है. By prioritizing mental health, society can foster healthier, happier, and more productive communities. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लेटिव प्रोग्राम्स. बी और ई तो लास्ट कैसे लग रहे हैं, बी और ई तो लास्ट में चले जाएंगे. या तो बी और ई यहाँ आएगा, बी और ई यहाँ आएगा, बचे तीन ए बी, ए सी और डी. ये तीन यहाँ पे घूमेंगे कहीं पे. प्रमोटिंग ओपन कंजर्वेशन कन्वर्सेशन एंड रिड्यूसिंग स्टिग्मा कैन हेल्प इंडिविजुअल सीक सपोर्ट व्हेन नीडेड. ये सजेशंस की बात दे रहे हैं तो लगभग यहाँ पे ये पीछे की तरफ जाएगा. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही हो गया. अब आगे स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन कॉमन इश्यूज. मेंटल हेल्थ एक एसेंशियल पार्ट है, इसको ओवरलुक करा जाता है. तो सी तो फर्स्ट हो गया हमारा, इसको ओवरलुक करा जाता है. फिर आगे स्ट्रेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन मोस्ट कॉमन इश्यू है जो अफेक्ट करते हैं लोगों को. सी और डी हो गया. फिर क्या हो गया, बाय प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ सोसाइटी कैन फोस्टर हेल्थियर हैप्पियर एंड मोर प्रोडक्टिव कम्युनिटीज. प्रमोटिंग ओपन कन्वर्सेशन एंड रिड्यूसिंग स्टिग्मा कैन हेल्प इंडिविजुअल्स सीक सपोर्ट व्हेन नीडेड. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड बेटर में. बी तो लास्ट लग रहा है मुझे, बी तो लास्ट लग रहा है क्योंकि बी तो बिल्कुल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. बची बात ए और डी. और ए और डी यहाँ पे कौन सा पहले आएगा समझ नहीं आ. ए और डी नहीं, सॉरी ए और बी, सॉरी ए और ई. ए और ई कौन सा आएगा ये समझ नहीं आ रहा. पहले क्या हो गया, सी हो गया हमारा. मेंटल हेल्थ एक एसेंशियल कंपोनेंट है ओवरऑल वेलबीइंग का. जब फिर भी इसको ओवरलुक करा, नजरअंदाज किया जाता है. स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन मोस्ट कॉमन इशू होते हैं जो सभी लोगों को अफेक्ट करते हैं. प्रमोट करें ओपन कन्वर्सेशंस को, रिड्यूस करें स्टिग्मा को तो मदद मिलेगी इंडिविजुअल्स को जब उन्हें सपोर्ट चाहिए. प्रायोरिटाइज करें मेंटल हेल्थ को, सोसाइटी कैन फोस्टर हेल्थियर हैप्पियर एंड मोर प्रोडक्टिव कम्युनिटीज. लास्ट की तो ये समझ, सी और डी समझ आ रहा है बस. सी और डी, डी लग गया चलो. फोर्थ, अच्छा चलो सीक्वेंस तो मिल गया हमें. सी डी, सी और डी से शुरू होगा. सी डी बी ए. फिर वही बात आ गई, सी और डी तो हमें भी पता था, ए बी ओ बी ए में तो हमें लग रहा था. एलिमिनेट भी नहीं कर पाए. चलो ट्राई करते हैं सी डी ए ई बी में. सी डी ए ई बी और सी डी बी ए ई में. गवर्नमेंट वाली बात तो मुझे लग रहा है लास्ट में जाएगी, तो ये तो नहीं होगा. सी डी ए ई बी लग रहा है. सी डी फिर प्रमोट करें तो एस से फायदा ये होगा. फिर ई प्रायोरिटाइज करें मेंटल हेल्थ को तो हम हैप्पी और मोर प्रोडक्टिव कम्युनिटीज बना सकते हैं. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्लीमेंट कर रही है बेटर हेल्थ के लिए. सी डी ए ई बी ही लगा देते हैं. सी डी ए ई बी.
भी दोबारा चेक कर लूं क्या गलत हो गया तो वो नंबर पेड़ सी टी। आई थिंक बी पहले आ जाएगा। बी ए ई भी हो सकता है यार। सी में ये हो गई, डी में स्ट्रेस फिर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम्स को जिसमें क्या करें, प्रमोट कर रहे हैं ओपन कन्वर्सेशंस को और प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। नहीं, ये वाला होगा, सी डी बी ए ई होगा। सी डी बी ए ई। अब ये सही चला जाए बस। ए लास्ट इज ई। एंटी पेनल्टी मेट इज थर्ड लास्ट यानी कि बी। अब मैं इनको चेक कर लेते हैं। द आर्कियोलॉजिकल टीम डिस्कवर्ड एन एंशियंट आर्टिफैक्ट विच दे बिलीव टू हैव which they believe which they believe to have belonged to a civilization that flourished more than 2000 years ago. More than 2000 years ago. Year ago, years more than 2000 years. ई में गड़बड़ है। मोर देन 2000 ईयर अगो आएगा यहाँ पे। द ओल्ड मैन withered by years of labor sat on the porch, his eyes squints at the sight of the children playing in the sun. ये मुझे इसमें of the children playing on street in the street या फिर on the street नहीं समझ आ रहा। ये भी नहीं लगा रहा मैं। ये भी नहीं लगा रहा, ये भी नहीं लगा रहा। फिलहाल तो ये 4 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउट आ रहा है। ये बस चेक कर लेते हैं। ये द रिनोन शेफ वाज नोन फॉर हिज डैश। मास्टरी के लिए जाना जाता था। लोकल इंग्रेडिएंट टू क्राफ्ट अ ट्रूली यूनिक डायल्यूट नहीं होगा। क्रिएटिव क्राफ्ट हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज वल्गैरिटी नहीं हो सकता। एक्स्ट्रावेगेंस नहीं था। ऑस्टेरिटी नहीं हो सकता। ऑस्टेरिटी फ्लैम्बायंस ये ठीक आया। The politician's speech was filled with weak promises and platitudes, doing little to dash the public growing skepticism, doing little to assuage तो ठीक है। पहले भी हो सकता था वैसे, लेकिन स्पेसिफिसिटीज ठीक नहीं बैठ पाता। द सडन ऑनसेट ये तो ठीक है। द डिस्पाइट फील स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट फास्ट ठीक है। बूस्टर डिमिनिशिंग ठीक है। बाकी तो ठीक ही लग रहे थे। चलिए, ये वाला मुझे अभी भी लग रहा है कहीं गड़बड़ा ना जाए। सी और डी तो कंफर्म हो गया। सी से स्टार्टिंग, डी से स्टेक। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बेटरमेंट हेल्थ नहीं प्रमोट कर रहे हैं। ओपन कन्वर्सेशन को रिड्यूस करें स्टिग्मा तो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को। बाय प्रायोरिटाइजिंग मेंटल सोसाइटी कैन बूस्ट। सही है यार, यही लग रहा है मुझे। हाँ, नहीं हुआ तो देखा जाएगा। चलो सबमिट कर देते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। ये लास्ट में करेंगे हम। पहले करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। x-54 13 पंचे 65 24 पंचे 120 माइनस 144 यानी कि माइनस का 24 54 30 35 दूनी 17 7 दूनी 14 140 एक्स स्क्वायर 17 पंचे 85 85 8 4 13 235 4 पंजे 20 4 3 12 13 14 140 एक्स स्क्वायर 17 पंचे 85 माइनस का 85 5 8 4 12 225 15 15 225 8 चौक 32 और 33/4 प्लस 8 पंजे 40 और 41/8 माइनस 3 दूनी 6 और 7/2 प्लस 4 दूनी 8 और 9/4 बराबर x। यहाँ पे 66/8 कर दो, यहाँ पे 4/14 कर दो और यहाँ पे 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 7 28 कर दो बल्कि यहाँ पे, और यहाँ 8 कर दो और यहाँ पे 2/18 कर दो तो 8। यहाँ पे 8 हो गया एलसीएम 66 प्लस 41 माइनस 24 प्लस 18। 8 और 1 9 6 15 में से 4 गया
11 में से ले 6 और एक 7 4 11 और एक 12 में से तो गया 10। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 से ही 5/8, 12 से ही 1/8 आ रहे, 5/8 तो नहीं आना, गड़बड़ा है क्या कहीं पे? 12 से ही 1/8, 5 से ही 1/8, दोबारा करना पड़ेगा। 8 चौक 32 और एक 33/4 प्लस 8 पंच 41/8 माइनस 3 दूनी 7/2 प्लस 4 दूनी 8 9/4, 4 दूनी 8 66, 41, 2 चौक 8 7 चौक 28, 4 दूनी 8 9 दूनी 18, सॉरी ये माइनस, ये प्लस का होगा यहाँ पे। 8 और एक 9 6 15 का, 15 में से 8 क्या 7 बचा, 6 4 10 और एक 8 में से 2 गया 6 बचा, 8 7 8 64, 4 और 6 7, 8 से 3/8 आ गया मेरा। 8 और एक 9 6 15 तो 5 हासिल, एक 6 और एक 7 4 11 और एक 12 28, 8 7 15, 11 में से 9 प्लस 11 97, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 से ही 1/8, ये वाला आंसर। 245 110 245 और 110 हो गए 355, 144 गया है इसमें से और 163 भी गया। 15 में से 4 3 7 गए 8 बचा, यहाँ रह गए 4, 14 में से 4 2 48, 165, 11 एकम 11, 11 पंच 55, 160 माइनस रूट एक्स बराबर माइनस का 159, 5 175, 15 में से 9 6 15, 6 में से 5 के 1 16 16 256, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 और 210, एक्स प्लस 75 प्लस 25 100 110, 52 16 सिनेमा 144, 144 12 12 और 5 1 6 64, यानी कि 8x बराबर 512, 64, 225 20 25 100 5 100 20 5 5 25 18 18 144, यानी कि 12 और 5 माइनस का 5 2 52, 8 दूनी 16 चौक 64, 14 चौक 56, 14 126, 6 6 12 5 6 7 87, 5 7 35 5 दूनी 10 7/2, 18 पंजे 90 900, 2 3 6 2 3 6 2 3 3350, 900 गया, बचा 13 में से 9 गया 4 2 4 5 0, 7 3 21 बाई 7 पंजे 35 0 35 दूनी 70 700, 35 का स्क्वायर 25 का 4 312 25 25 25 हम 625, 300 गया इसमें से, तो हो गया 300 गया तो ये 325 बचा, 5 5 10 का 0 2 2 4 और 1 5 3 2 5 1550, 5 बने 300 है। रूट एक्स गुणा 35, 28, 5 7 35 5 3 10 गुणा 28, 2 1 2 17 14 14 14 17 98 माइनस का 161 प्लस 17 7 5 12 का 2 6 और 7 और 1 8 182, 35 रूट एक्स 98 8 10 का 0 9 9 18 280, 9 218 का 8 280/3, 9 30 30 आ रहा है इसका आंसर, कुछ लग रहा है 35 रूट एक्स
35 है यहाँ पे, 728, 0, 7 पंजे 35, 5 अट्ठे 40, 8 64 है आंसर। डी आई। इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्ड भी है, स्टील कार मैन्युफैक्चरर्ड की परसेंटेज दी है नहीं से। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। इलेक्ट्रिक कार, फ्यूल कार। इलेक्ट्रिक कार के लिए लिख लेते हैं कितनी। इलेक्ट्रिक कार ब्लू वाले हैं। एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच का है, यानी 10 का एक है। 210, 160, 230, 150, एक, दो, तीन, 230, 180। एक, दो, तीन, 180 हो गया। ये परसेंटेज देख लेते हैं। पहले तो है अपनी 30%, फिर 50 और एक 60%, फिर है हमारा 50%, फिर है 50 से ऊपर दो 70, और लास्ट है हमारा 40। तो ये हो गया हमारा 70% हो गया। 210 के बराबर, सात तीन इक्कीस, तीन तीन 90, 40, 160 के बराबर, चार चौक 16, छह चौक 24, 50, 230, 30 हो गया, 150, तीन पंजे 15, सात पंजे 35, 60 हो गया, 180 के बराबर, छह तीन 18, चार तीन 12, ये हो गया 120। डिफरेंस बिटवीन टोटल कार्स इन मार्च। टोटल इन मार्च कितनी है? 23, 40, 460। टोटल ऑफ मे, एक, दो, 300, 160। टोटल मैन्युफैक्चर्ड इन जून। जून जो है वो 4 है। फ्यूल ऑफ जनवरी, जैन की फ्यूल कितनी? 936, 360। देन फाइनल का जून 360। टोटल मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 9 और एक 10, 300 जो है। व्हाट परसेंटेज मोर देन फ्यूल ऑफ फैब? फैब के फ्यूल 240, 60, 240, 100, 624, 25%। आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल, 5, 5, 3, 4, 500, 36% अनसोल्ड है। द रेशियो ऑफ सोल्ड 36%, 36 यानी कि 64 जो परसेंट जो है, दो तीन से 320 जो है वो सोल्ड है। और रेशियो जो है इलेक्ट्रिक फ्यूल का सोल्ड इज इलेक्ट्रिक नंबर टू इलेक्ट्रिक टू फ्यूल सोल्ड, तीन और एक चार, चार अट्ठे 32, आठ आठ तीन 24। ये इलेक्ट्रिक और ये फ्यूल सोल्ड में आ गई। अनसोल्ड अप्रैल की फ्यूल बतानी है। 240, 350 में से 240 क्या, 110। फ्यूल ऑफ अप्रैल एंड मई इज 200। इफ द नंबर ऑफ फ्यूल का सोल्ड इन अप्रैल एंड मई इज 200, अप्रैल की सोल्ड प्लस मई की सोल्ड 200 है। 200 और 70, अच्छा 200 और 70 है फ्यूल अप्रैल और फ्यूल मई के। एंड द रेशियो, देन द रेशियो फ्यूल का अनसोल्ड अप्रैल टू मई। अप्रैल 150, फ्यूल ऑफ मई 7, 5, 12, 3:1। ये मैं यूजुअली स्किप करता हूँ, अगर बचता है टाइम तभी करता हूँ, फिर भी और बन जाएगी हमारी अभी। टोटल बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल, नंबर ऑफ बुक्स रीशेड। ठीक है, नॉट इशू निकाल सकते हैं हम। A B C D E।
नॉट इशूड 440, 8 और 2 10, 4 और 3 7 320। सी में हो गया 5 480, 510, 450 हो गया, और 360, 10, 370, 410। ये हो गया अवेलेबल, ये हो गया इशूड। ये भी लिख लेते हैं, 840, 700, 980, 910, 770 इशूड हो गई। 400, 380 और 500, 460 और 360। रेशियो ऑफ नॉट इशूड इन डी, नॉट इशूड इन डी, इशूड ऑफ सी की इशूड 500, 5 ने 45, 5 का 5 9 10। नंबर बुक्स नॉट इशूड इन बीडी टू कहता है, बी और डी की नॉट इशूड कितनी होगी, 5 6 7 770। व्हाट परसेंटेज में टोटल अवेलेबल इन बी, 7110। Difference between issued in A and D together. Difference with the number of books issued A and D together. A और D की issued, A और D की issued होगी 4,860। नॉट इशूड ऑफ ई और डी, ई और डी की नॉट इशूड होगी 4,860। जीरो। If the total available in library F is the average of total number of D और E, D और E 7 और 1 8 9 7 16, 2 16 840 है F में। Then the available in F 840 out of the total number of books available in library A and B, 50% are fictional books and the remaining are non-fictional. Find the total number of non-fictional defining A की 50 यानी 2 4 420 और 60 यानी कि 40%। 7 280, 4 700। ये कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, यानी 4A इज इक्वल टू L+5। सर्कम इज इक्वल टू whose साइड इज L+5, यानी कि 4L+5 जो है वो इक्वल है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जिसकी रेडियस 2, R कितनी है 7। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से 7 कर लीजिए, L बराबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose साइड इज L। तो 36। आमिर इतने ऑप्शन इंटरेस्ट लिया। Find the rate of interest invested. If the rate of interest is twice the investment period. 3680 SI पे लगाए हैं और ऑप्टेन इंटरेस्ट कितना है 1840। 1840, ठीक है। Find the rate of interest at which Amir invested. मानो 8% पे लगाए थे। Find the rate of interest कितने समय के लिए लगाए, if the rate of interest is twice the investment period. Rate of interest is twice of investment period। 2T, R इज इक्वल टू 2T है अगर, तो 2T रख लिया हमने R की जगह और T हमने टाइम के लिए लगाए थे, तो हमारे पास इंटरेस्ट है 1840 का। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 इधर पहुंच गया। 368, 4 नेम 36, 4 दुनिया 4 चौक 16, 4 6 24, 0। और तो किसी से कट नहीं रहा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 शॉप 92, 25 ऊपर गया 25। T² T इज इक्वल टू 5 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट T इज इक्वल टू 5, तो R 10 आएगा। ए और बी 8/15। ए और बी टू कैलेंडर में भी 8/15 ऑफ द वर्किंग 5 डेज। 8/15 5 डेज में करते हैं तो 15 5 75/8 दिन में करेंगे ए और बी दोनों मिलके किसी काम को। फिर बी अलोन करता है, बिन को कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। 8/15, 8 7/15 का काम कितने दिन में करता है, 7 दिन में।
15 दिन में करेगा पूरा काम। बी 75 हो गया एलसीएम, ये हो गया 8, 15 पंजे 75, ए की एफिशिएंसी होगी 3, बी की एफिशिएंसी है 5। ए कितने दिन में करेगा? 3 ए दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 दिन में करेगा। ए वेसल में 120 लीटर मिक्सचर जूस और वाटर का है, 8 और 7 के रेशियो में 120 मिल्क और जूस। 8 7 15, 8 120, 8 7 56, 30 मिक्सचर टेकन आउट किया गया, 18 वाटर ऐड किया गया है। वाटर 18 ऐड हो गया और 30 लीटर मिक्सचर, 8 से 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14। 16 और 14 इसमें से चला गया, 6 में से 4 गया 2, 42 ये बचा, 14 में से 6 गया 8, 5 में से गया 48 ये बचा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइनल क्वांटिटी ऑफ जूस टू वाटर। जूस टू वाटर 6 सत्ते 42, 6 3 18, 7:3, 7:6 तो है ही नहीं। 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन नाउ, 120 जूस और वाटर, जूस और वाटर है यार, ये जूस है, ये वाटर है, इसमें 18 ऐड किया गया, 8 हो तो 10 का 0 हासिल, 4 हो 5 50, 48 और 50, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, गड़बड़ा गया। 120 ये जूस है, ये वाटर है, 8 7 15, 120, 8 चौसा, 8 7 56, 30 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट और 18 लीटर वाटर इज एडेड। 18 वाटर ऐड किया, 30 लीटर मिक्सेस चला गया, 8 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 16 इसमें से गया, 14 इसमें से गया, तो बेसिकली इसमें कितना गया? 4 ऐड हो गया, तो ये 60 हो गया। 14 में से 6 गया 8, और ये कितना था? 5 में से गया 4, 4 एक हम 4, 4 दूनी 8, 4 एक हम 4 में से 3 6 12, 3 पे मिला 4, इसलिए 5। 68 स्टूडेंट है, रेशियो ऑफ द एथलीट्स टू क्रिकेटर कितने हैं? एथलीट्स और क्रिकेटर 2x और 9x है। सिंगर 8 मोर देन, सिंगर इज 8 मोर देन क्रिकेटर, 9x प्लस 8, 9 और 18 19 26 इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 3। फाइंड द क्रिकेटर्स बताने हैं, 8 9 3 27। बी और सी पार्टनरशिप में आते हैं 40 35 50, 40 35 50, 5 38 40, 5 7 35 10। ए बी और सी, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 5,000, डिफरेंस ऑफ ए और सी बताना है। 5,000, 8 7 15 25, ए और सी का डिफरेंस कितना है? 2 का, 25 दूनी 50, 2 दूनी 400। वो नहीं पाएगा कोई भी। एक बोट 120 चलती है 80 मिनट के अंदर, 80, 120 किलोमीटर, 80, 60, 2 चौक 8, 2 3 6, 4 3 12, 3 3 90 हो गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड। सेम 150 अप स्ट्रीम, 150, 180, 60, 6 3 18, 3 5 15 अप स्ट्रीम में भी फाइंड। 20 सेकेंड और होते तो हो जाता है क्वेश्चन में। 8% sitting in a linear row facing north, each side from one of the ends। एक दो तीन, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, 1 2 3 4 5। Two between P and A, P into A, P into A, north में बैठे हैं चलिए उसमें। The number of person left of A एक ज्यादा है, right of A left of A एक दो एक ज्यादा है भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 वाई। S right of Y C, 1 2 3 4, 1 2 3 4 C, C। Q second right of C, Q is second right of C, Q is second right of C। R immediate right of B, R is immediate right of B। तो R is immediate right of B केवल इन्हीं पॉसिबल है, ये चला आगे, ये सही है। हम द फॉलोइंग पर्सन लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड में B रहता है। हाउ मेनी बिटवीन Q एंड Y, Q इधर है, Y इधर है, 2। फोन ऑफ फॉलोइंग पर्सन थर्ड राइट ऑफ Y, Y के थर्ड राइट में Q। R P A Q, R P से रिलेटेड है, A Q से रिलेटेड है, तो C से रिलेटेड होगा Y। Which of the following adjacent to each other? YC BP CQ, YC BP
वाई और सी ही है केवल। इस पे लास्ट में करेंगे। हाउ मेनी पेयर, पेयर फॉर्मेशन कर सकते हैं 4, 2, 3, 8, 7, 1, 9, 5, 6, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 का किसी से नहीं बनेगा, 7, 8, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 9 का किसी से नहीं बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 4 डबल है, मोर देन 3। 8% स्क्वायर टेबल में है। कॉर्नर्स फेसिंग सेंटर्स, कॉर्नर वाले सेंटर देख रहे हैं एक, बाकी बाहर देख रही हैं। डी सेकेंड राइट ऑफ द वन अपोजिट टू जी, ऑपोजिट टू जी, जी यहाँ रख लेता हूँ, अपोजिट टू जी के सेकेंड राइट में डी, ऑपोजिट टू जी के सेकेंड राइट में डी। टू बिटवीन डी एंड एच, टू बिटवीन डी एंड एच, टू बिटवीन डी एंड एच। एज मैनी एच और सी और ए, एच और सी और ए, एच एक छोड़ के सी, एक छोड़ के ए, एच एक छोड़ के सी, एक छोड़ के ए, तो यही आएगा। एच एक छोड़ के सी, एक छोड़ के ए, एच एक छोड़ के सी, ए, तो यही आएगा। सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, वही पता चलेगा। सी डजंट एट द कॉर्नर, सी इज नॉट कॉर्नर। एच एक छोड़ के सी, एच एक छोड़ के सी, एच एक छोड़ के सी, एच सी ए, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। एच सी ए यहाँ पॉसिबल, एच सी ए यहाँ पॉसिबल है, अभी नहीं पता चल रहा। यहाँ पे एच सी ए, एच सी ए, एच एक दो, सी यहाँ, सी यहाँ, दोनों पॉसिबल है अभी। एफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन ऑपोजिट टू ए, ऑपोजिट टू ए के इमीडिएट लेफ्ट में एच सी ए, अगर यहाँ रखते हैं हम तो ऑपोजिट टू ए के इमीडिएट लेफ्ट में एफ हो गया। अगर एच सी ए ऑपोजिट इमीडिएट लेफ्ट पॉसिबल है तो यही पॉसिबल है, केवल ऑपोजिट एच के इमीडिएट लेफ्ट में एफ यहाँ पे हो गया। मोर देन वन बिटवीन बी एंड ई, लेफ्ट ऑफ बी, मोर देन वन बिटवीन बी एंड ई, यही पॉसिबल है केवल। बी एक दो तीन, बी और ई दोनों में से बी, पता नहीं चल रहा कहाँ होगा अभी। सी और सी यहाँ पे भी हो सकता है, भी नहीं पता चला। मोर देन वन बी एंड ई, ई इज आउटसाइड, ई इज आउटसाइड तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ई इज आउटसाइड तो ई या तो यहाँ होगा। मोर देन वन बिटवीन बी एंड ई, एच सी, कुछ करके अंदर गड़बड़ हो गया। आंसर सी, सी और सी डजंट कॉर्नर ऑफ द टेबल। एच एक छोड़ के सी, एक छोड़ के ए, एच सी ए यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, बी एक दो तीन चार, तो बी और ई के बीच में तो आराम से लोग आ रहे हैं। अगर ए यहाँ रखते हैं, जी यहाँ रखते हैं, एच यहाँ, एफ यहाँ, डी यहाँ और एच यहाँ, सी यहाँ, ए यहाँ रखा, ई बाहर देखेगा तो यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, बी देखेगा अंदर, तो सी और ई में तो स्लैश जा रहा है। होम द फॉलोइंग अपोजिट टू थर्ड राइट ऑफ द वन अपोजिट टू एच के थर्ड राइट में, अपोजिट टू एच के थर्ड राइट में तो एफ है। कॉर्नर ऑफ द टेबल कौन है? एफ डी जी बी, एफ डी जी बी, डी और जी। हाउ मेनी बिटवीन हु फेसेस डी एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, हु फेसेस डी, हु फेसेस डी एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तीन। इसमें हु फेसेस डी और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये तो पॉसिबल नहीं होता है कि यही होगी फिर, कि कुछ छूट गया शायद। द नंबर ऑफ पर्सन ए और बी लेफ्ट ऑफ ए, ए और बी यानी कि दो,
एक कम है, यानी कि तीन लोग होंगे, डी और ई नहीं, एफ और एच नहीं, बी और डी, हाँ बी और डी, इससे सी और जी और ए और डी नहीं हो सकता। ऑल द पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड दो अनचेंज रह गए। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट succeeded by vowel, consonant succeeded by vowel, preceded by consonant, vowel, consonant, consonant, vowel के बाद दो consonant, vowel, 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 consonant, consonant, vowel, consonant, दो, तीन, तीन, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, आउट वन आउट, क्यू एल एस, क्यू एक दो, एल एक छोड़ के एस, पी डी एम, टी इज वेयर एक दो, डी एक छोड़ के एम, आर एन डब्ल्यू, आर एक दो, एन एक छोड़ के डब्ल्यू, ठीक है, टी जी एच, टी पता नहीं है कहाँ से आ गया, यही गलत है, वी वाई ये भी चेक कर लेंगे, वी कहाँ पर है, वी एक दो कर, तो ये वही गलत है। If the second half is reversed and it is arranged from the left end, and it is arranged from left second half, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यानी ये पूरी अगर रिवर्स कर देंगे, डब्ल्यू से स्टार्ट हो जाएगी सीरीज, तो 17th राइट एंड से, तो ये तो हो गए 13, चौदह, चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, डी होगा आई थिंक। कॉन्सोनेंट में प्लस वन करना है, इमीडिएट प्लस वन करना है, और वोवेल में माइनस वन करना है। देन हाउ मेनी लेटर्स दैट कम बिफोर एम एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर ड्यूरिंग द सीरीज। एम से पहले जो आते हैं, सी आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, सी आएगा, बी नहीं आएगा, टी एस टी, बी नहीं, टी भी नहीं आएगा, बी आएगा, सी आएगा, बी आएगा, वाई नहीं आएगा, एच आएगा, ए आएगा, क्यू नहीं आएगा, टी, ई, एल, एल को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, बिफोर एम एल तो नहीं करना चाहिए कंसिडर, जी आएगा, एस नहीं आएगा, पी भी नहीं आएगा, एक्स के आएगा, डी आएगा, आई आएगा, एन हो जाएगा, वो नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, आर पी नहीं आएगा, एफ आएगा, जे आएगा, एन नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, डब्ल्यू नहीं आएगा, छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह होनी चाहिए, ग्यारह ही हाईएस्ट चलो, 7 persons one after another, ठीक है, E immediate before J, E is immediate before J, only three between E and C, E, ए- एक दो तीन C, E immediate before J, तीन C, एक दो तीन C, एक दो तीन C, ठीक है, S between J and C before G, J and C दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार, तो जी से पहले भी चार, एक दो तीन चार, जी पॉसिबल नहीं है तो एक और, एक दो तीन चार जी यहाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, जी यहाँ, दो यहाँ, अगर एक दो तीन चार पाँच तो ज्यादा हो जाएगा, या तो ऊपर एक होगा या एक भी नहीं होगा, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं पहले, जी यहाँ कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात दोनों यहाँ कर लो, और एक ऊपर रख लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तो जी तो पॉसिबल ही नहीं है फिर, जी तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे, ये वाली, डी इज एडजेसेंट टू जी, डी यहाँ हो गया, डी यहाँ हो गया, द नंबर डी और एच एक कम है आफ्टर डी, डी और एच एक कम है आफ्टर डी, एक दो तीन तो एक दो एच, एक दो तीन, एक दो तीन तो
डी एक दो दो होंगे एच और डी के बीच में, आई बिफोर एच नहीं है, आई इज आफ्टर एच, ये वाला ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इमीडिएट आफ्टर एच, इमीडिएट आफ्टर एच कौन सा हो गया, सी। हाउ आफ्टर डी, डी के बाद कितने लोग हैं, तीन। जी इज वन टू थ्री, दो दो चार पांच हुआ। एस विद जी और जी, सी एंड जे, एक छोड़ के जी, सी एंड डी, E J D G. E is related to J, D is related to G, then I is related to, then I से कौन related है, I is related to C, related to I से। H से M जाना है, H से M जाने के लिए H से D, नहीं, H से M, H से J जाएंगे पहले और J से M जाएंगे, फर्स्ट इज करेक्ट, I से N जाना है, I से N, तो I से पहले जाएंगे J, J से जाएंगे D, I से J, J से D एंड डी से एन, दोनों करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। जेड से आर जाना है, जेड से आर, जेड से वी, जेड से, जेड से क्यू, क्यू से एक्स, जेड से क्यू, क्यू से एक्स, क्यू से एक्स और एक्स से आर, एक्स से आर जाएंगे सकते हैं, पहला तो गलत हो गया, डब्ल्यू से बी जाना है, डब्ल्यू से एक्स, एक्स से क्यू, डब्ल्यू से एक्स, एक्स से क्यू, डब्ल्यू से एक्स इधर हो गया, एक्स से क्यू इधर हो गया, इधर नॉन हो गया। एफ से बी, बी से आइदर अप हो सकता है, एफ से जे जा नहीं सकते, आइदर और ही है। 7%, 7 डेज, संडे टू सैटरडे, दो तीन चार पाँच छः सात, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मैक्सिमम दो जाते हैं, मैक्सिमम दो जाते हैं, तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं केवल इसकी, इवन नंबर एम और जे, एम एक दो, बस जे एक दो तीन चार, जे एक दो जे, इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज, एल थ्री आफ्टर जी, एल थ्री आफ्टर जी पॉसिबल नहीं है, एक दो तो एक दो तीन चार ही पॉसिबल है यहाँ पे, एक दो तीन, के इज एडजेसेंट टू एम, के इज एडजेसेंट टू एम, यहाँ पे के यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बिफोर एक बना लेते हैं जल्दी से, जे एल एम, के यहाँ, बिफोर के एक ज्यादा है, आफ्टर आई, बिफोर के एक दो तीन चार, एक दो तीन पॉसिबल है, बिफोर के एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार आई, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच आई, एन इज बिफोर के, एन इज बिफोर के, कहाँ होगा पता नहीं, फोर वेंट आफ्टर ओ, एक दो तीन तो ओ यहाँ एन यहाँ, ओ यहाँ एन यहाँ, ओ इज नॉट ऑन ट्यूसडे, ओ इज नॉट ऑन ट्यूसडे, ये गया ये सही। एडजेसेंट डेज पे कौन जाता है, एम और आई, के ओ, एम और आई नहीं जाता, के और ओ नहीं जाता, आई और एन, आई और एन जाते हैं, एज एल एंड आफ्टर एल एक दो, ओ और एन नहीं, एल और जे, एल और जे, ये एम और एन के बीच कितने लोग जाते हैं, दो, एल कहाँ की थर्सडे को जाता है, एल क्यों बताना है, के ऑन मंडे नहीं, आई बिफोर जे, आई इज बिफोर जे नहीं, ओ इमीडिएट आफ्टर जे, ओ इज नॉट इमीडिएट आफ्टर जे, टू बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच तो, only a few cyclone earthquakes, few cyclone earthquake or storm, no earthquake is a storm or storm or tornado. All tornado can never be earthquake, all tornado सही है, all storm being cyclone is a possibility, all storm being cyclone correct, both.
All yellow is violet. Some white is indigo. Only a few indigo are violet. Only a few indigo is violet. Some white is indigo. All indigo is yellow. All indigo is yellow. नहीं. Some yellow is not indigo. All or some not indigo yellow. Some not. All or some not. यार इसमें मुझे डाउट है. ऑल और सम नॉट वाले में इसमें या तो आइदर होगा या फिर नाइदर नॉट होगा. मैं इसको आइदर लगाऊं या नाइदर नॉट समझ नहीं आ रहा. इसमें कंफ्यूजन है मुझे. ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर रहा. ऑल पीकॉक इज पिजन. ऑल पीकॉक इज पिजन. Few eagle is pigeon. Few eagle is pigeon. Some parrot is peacock. Some parrot is peacock. Some eagle are not peacock. Some eagle are not peacock. नहीं कह सकते. All parrot being pigeon. All parrot being pigeon is a possibility. Correct is not a possibility. गलत. Neither. Male members कितने हैं? U is brother-in-law of Z and vice versa. U is brother-in-law of Z. Z भी मेल होगा. कौन सी कैसी शादी? X is brother-in-law of S. Y is only daughter of X. Y is only daughter of X and married to Z. तो U ये होगा. Z ये होगा. S is maternal aunt of U. S is maternal. S is maternal aunt of U. W is mother-in-law of Z. W is mother-in-law of Z. तो S ये हो गई. S is brother-in-law of S. ये ठीक हो गया. V is father-in-law of W. V is father-in-law of W. ये बना. मेल मेंबर्स कितने? 1 2 3 4. U is brother-in-law of Z. U is brother-in-law of Z and vice versa. X is brother-in-law of S. X is brother-in-law of S. but X का कोई सिबलिंग नहीं है. ठीक है. Y is only daughter of X. Y is only daughter of X and married to Z. ठीक है. S is maternal aunt of U. S is maternal aunt of U. ठीक है ये भी. W is mother-in-law of Z. W is mother-in-law of Z. V is father. V is father of W. V is father of W. ये ऐसे चलेगी. तब बेचारी लोग. G is spouse of S. G is spouse of S. तो G W को क्या कहेगा? G W को कहेगा सिस्टर इन लॉ. X U के U X को क्या कहेगा? U X को कहेगा फादर. S B को कहेगा फादर. ये कौन सा छोड़ दिया? ये छोड़ दिया. एक चलो तो टाइम भी नहीं है इसको करने का. चलो देखते हैं. इसमें वन थिंग एक आध गलत जा सकता है. सबमिट कर ही देते हैं. 78 स्कोर है. 88 अटेम्प्ट हुए हैं. 8 इनकरेक्ट गए हैं. 91% एक्यूरेसी है. लेट्स सी द परसेंटाइल. परसेंटाइल 90 प्लस होने चाहिए. 97.32 है परसेंटाइल. तो चलो ठीक है. 605 रैंक है आउट ऑफ 22,000 अराउंड. 678 देख लेते हैं गलत कहाँ हुआ है. इंग्लिश में 4 गलत हो गया है. ठीक है. न्यूमेरिकल हाँ रीजनिंग में 4 गलत हो गया. देखते हैं. पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी सेक्शनल क्या रही है परसेंटाइल. आई थिंक न्यूमेरिकल एबिलिटी में और रीजनिंग दोनों में कही गई होगी. परसेंटाइल वहाँ देखो. न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 80 और 80 में ही रहती है. 4 गलत हो. इसमें थोड़ा अटेम्प्ट और हो सकता था. मुझे पता है थोड़ा स्पीड कम रहा मेरा कैलकुलेशन में. कहीं कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़. ये 4 गलत हो गई इस वजह से इसमें परसेंटाइल गिर गई है. लेट्स चेक कहाँ गलती हुई है. इंग्लिश में तो मुझे लग रहा था कि इंग्लिश थोड़ा सा था मॉडरेट.
पता नहीं क्यों कुछ टाइम से एरर गलत जा रहे हैं। His unwavering determination and profound to overcome forbidden obstacles. क्या गलती है? Because the phrase forbidden obstacles is contextually incorrect. The word forbidden means something that is not allowed or prohibited. Obstacles are challenges or difficulties that must overcome. The correct word to use here is a word that means difficult, imposing, or awe-inspiring, such as formidable. Correct sentence: overcome formidable obstacles. यार ये तो कुछ अलग ही लेवल का था। ये तो कुछ अलग ही तरीके की थी यार। Forbidden obstacles, formidable, ये भी कर लेते हैं। सी में एरर है। believed to have which refers to what, क्या होना चाहिए? which they believed had belonged to is an infinitive phrase and does not fit grammatically. Which they believed belonged, the past perfect had belonged is used here. Which refers to artifact, ये बात तो सही है, which तो artifact को जा रहा था। An ancient artifact which they believed to have, ठीक है चलो, आ क्या समझ में। ये क्या है? द ओल्ड मैन withered, डी at the sight, his eyes frings at the sight, sprinkling, his eyes sprinkling आएगा यहाँ पे। मैन की आई को डिस्क्राइब कर, his eyes sprinkling at the sight, ठीक है। बोल्ट का क्या मतलब है? बोल्ट मीन्स टू रन सडनली। द हॉर्स bolted as soon as the gate opened, तो ठीक है ये तो। he tightened the bolt on the chair। दूसरा मतलब क्या? refers to metal fastener, bolt on the chair to fix it। बोल्ट, अच्छा बोल्ट मतलब वो कसने वाला बोल्ट। she grabbed a bolt of cloth from the shelf। बोल्ट ऑफ क्लॉथ का यहाँ क्या मतलब? refers to roll of fabric। कितने मतलब होते हैं बोल्ट के यार, इसलिए मैं इनको अवॉइड करता हूँ करना। he decided to bolt the exam without studying। bolt is not used to take an exam suddenly। अजीब ही था। 12th। स्प्रिंग के तो मैंने कई मतलब नहीं, स्प्रिंग वो वाला होता है जो हम स्प्रिंग जानते हैं, जो यूज होता है एज टू। एक स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग सीजन होता है, और एक स्प्रिंग का मतलब होता है कोई चीज कहीं से ओरिजिनेट करती है। तो देख लेते हैं। स्प्रिंग इज सेट और ट्रिगर। रिफ्यूज रेफर्स टू अ कॉइल, वे कॉइल मतलब वही स्प्रिंग टूल वाला। मेटाफोरिकल फॉर सरप्राइजिंग सन। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, मतलब सोर्स के लिए भी यूज होता है। चलो, शी ट्राई टू स्प्रिंग द ट्रैप केयरफुली, चलो ये तो ठीक है। ही वाउंड द स्प्रिंग, ये भी ठीक है। शी मैनेज टू स्प्रिंग अ सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज करने के लिए भी यूज होते हैं। द फाउंटेन हैज अ नेचुरलिस्ट। चलो, स्टर्न का मतलब वही हार्ड, स्ट्रिक्ट और सीवियर हो गया। बैक ऑफ अ शिप भी होता है, फर्मनेस के लिए भी यूज होता है। द चाइल्ड वोर अ स्टर्न हैड, स्टर्न क्लॉथ के लिए यूज नहीं होता। ये मुझे लग रहा था, इसमें मैंने ठीक नहीं करा था हालांकि। चलो, विच फील्स, ये क्या है? ऑपोजिशन पार्टी, by the opposition party who feel that it will more worsen the, who feel that it will more worsen, it will worsen the economic situation, who feel more worsen तो गलत है। which feels, the pronoun which is generally used for things or animals, the subject, ये तो चलो ठीक है। who feels, the subject is opposition party, a collective noun which is a can sometimes be treated as singular or plural in the context, it refers to the member of the party who feel। okay, अपोजिशन पार्टी इनको उन्होंने प्लूरल लेके करा है, तो उसमें सीन आएगा। चलिए तो ठीक है। ये क्या हो गया? irrelevant to its fundamental component, the basis is that the size of an ecosystem is irrelevant to its fundamental components। ये कहाँ लिखना था? द पैसेज सिस्टम वेरी करते हैं साइज में, स्मॉल से इसमें, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस स्केल, ऑल इकोसिस्टम शेयर फंडामेंटल कंपोनेंट्स कैन बी डिफरेंस है देयर बेसिक कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स मेकिंग द सेल इररिलेवेंट बना देते हैं। लिखा तो है यार।
किसने ना लिखा ये बात? फंडामेंटल कंपोनेंट्स यूज करते हैं, कंज्यूमर्स ईट करते हैं, ये सब चीजें हो गया। इकोसिस्टम क्रिटिकल है, एक हेल्दी इकोसिस्टम ही क्लीन एयर देता है, एग्रीकल्चर स्टेबल देता है, ऐसी एक्टिविटीज ही करती हैं, डेलिकेट सिस्टम है कि स्टोन कैसे बिंग इफेक्टेड डिस्टर्ब करता है पूरे बैलेंस को अंडरस्टैंड और प्रोटेक्ट करना। ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये फंडामेंटल नहीं है, या फिर उन्होंने कहाँ से दिया? दी सिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज, ये लाइन तो लिखी हुई है। पता ही नहीं इन्होंने कहाँ से लगाया ये लाइन लिखी हुई है फंडामेंटल को लेके तो कि फंडामेंटल ऑल डिस्पाइट देयर डिफरेंस इन स्केल ऑल इकोसिस्टम शेयर fundamental components. The passage the size of an ecosystem is a defining factor. ये तो कोई मतलब नहीं था, हालांकि मैंने लगाया तो कोई मतलब नहीं था क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज भी नहीं था। ये लार्ज तो नहीं है, स्मॉल भी हमेशा नहीं रहता, कंसिस्टेंटली सेम भी नहीं रहता, इररिलेवेंट टू इट्स फंडामेंटल कंपोनेंट। हाँ ये ठीक है वैसे ये वाला आंसर, बट डायरेक्ट आंसर इसमें से कहीं दिख नहीं रहा, ना कोई ऐसा रेफर कर रही है कोई लाइन इसमें, आई थिंक सो। या तो मुझे दिख नहीं रही इस टाइम। Despite their difference in skill, all ecosystem share fundamental components. उनका खुद का खाना बनाते हैं। नहीं समझ आया, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। इसमें तो ऑलमोस्ट सारे ठीक हैं। रीजनिंग में कौन कौन से गलत होते हैं? मैंने जो जो मार्क फॉर रिव्यू लगाए थे वही भी गलत थे। आइदर और इसमें ओनली टू है। सम येलो इज नॉट इंडिगो, सम येलो इज नॉट इंडिगो तो सही है, मैंने इसमें आइदर और क्यों लगाया पता नहीं। ये भी गलत हो गया, मुझे सिलॉक्स गलत हो गया यार। सम ईगल्स आर नॉट पीकॉक, सम ईगल्स आर नॉट पीकॉक, तो ये तो सही कैसे है ये? सम ईगल्स आर नॉट पीकॉक, ऑल पिक ऑल पीकॉक इज पिजन, ये बनेगा। ओनली अ फ्यू पिज ईगल इज पिजन, ओनली अ फ्यू ईगल इज पिजन, ये ऐसे बनेगा। सम पैरट इज पीकॉक, सम पैरट इज पीकॉक, सम ईगल आर नॉट पीकॉक, सम ईगल आर नॉट पीकॉक, ये हम कह कैसे सकते हैं? नहीं कह सकते नहीं ये बात, इन्होंने कैसे कह दी? नहीं, अगर ये चीज कंसिडर करी जाए कि अगर पूरा पिकॉक पिजन है तो जब ये कुछ पिजन नहीं हो सकता तो पिकॉक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सम पार्ट ई का पिजन में नहीं जाएगा, जरूरी थोड़ी है पिकॉक ही नहीं जाए। पिकॉक और ई दोनों में हो सकता है रिलेशन कुछ, लेकिन ऐसे भी बन सकता था पिकॉक यहाँ पर ऐसे आ जाए और ये पूरा पिजन ऐसे आ जाए। नहीं यार बात तो सही है। ये मेरे से लॉक्स का कॉन्सेप्ट हिल कैसे गया थोड़ा सा। सम ईगल आर नॉट पिकॉक, सम ईगल आर नॉट पिकॉक, ये तो ठीक है। नॉट पिकॉक, सारे पिकॉक सारे पिजन है, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक बात है यार, ये पता नहीं मैंने गलत क्यों कर दिया, ये मैंने पता नहीं क्या ज्यादा दिमाग लगा दिया इसमें। ये क्यों गलत हुआ? मैंने कौन कौन से लिए हैं, ये चेक करते हैं मैंने कौन कौन से लिए था और मुझे कौन कौन से लिए। डी सी, सी और डी हो गया ठीक है, बी और सी हो गया, एच और आई हो गया, और अच्छा आई हो गया। ये ए लिया है मैंने, ए का जेड नहीं लिया है मैंने। अच्छा ए जेड में चला जाएगा, ये चीज हमने ध्यान नहीं दी। ए में जब -1 करेंगे वॉवेल में तो ये जेड चला जाएगा और जेड बाद में आता है, ये मिस्टेक। आगे से इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ए वाले का खासकर से, क्योंकि ए के साथ ये कंडीशन होगी और किसी के साथ नहीं। इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट सक्सीडेड बाय वॉवेल प्रिसीडेड बाय, तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट 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 सक्सीडेड बाय वॉवेल। अरे मेरे में तो वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आ रहा था ना, आई थिंक। हाँ, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल ढूंढना था।
वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट दो, एक एक यहाँ पर है, दो, तीन, चार है, ऑब्वियसली चार नहीं है, ये मैंने छोड़ दिया था। सर्टिफिकेट है, कॉन्सोनेंट में -1 करना है, वोवेल में +1 करना है, तो ये बनेगा। फिर इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया। थर्ड लेटर ऑप्शन भी तो इजी सा है। तो फिलहाल ये रहा मेरा ओवरऑल स्कोर टेंथ स्मॉक में। आपका क्या स्कोर रहा? कुछ तो सिली मिस्टेक्स हुए, जैसे रीजनिंग में नहीं था स्कोप 4 ही गलत होने का, 2 तो सिलॉक्स ही गलत हो गया, चलो तो वो तो थोड़ा सा गड़बड़ाया। हाँ, थोड़ा सा सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट जो हमेशा कुछ ना कुछ, जब कभी कभी मेरे साथ पता है क्या होता है, जब मैं सिलॉक्स में थोड़ा ज्यादा सोच लेता हूँ तो मेरा गलत हो जाता है। जब मैं सोचता नहीं है, स्पीड के साथ करते चले जाता हूँ, तो मेरा गलत नहीं होता। कहीं अगर आपने जरा सा भी थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लिया ना सिलॉक्स में, तो वहीं गलत हो जाता है मेरे केस में तो। डू लेट मी नो आपका स्कोर क्या है इस पर्टिकुलर मॉक में। मेरा 78 रहा, 18 करेक्ट नहीं है। और वो ये रही परसेंटाइल, तो मैंने आपको दिखाई दी 97 पॉइंट कुछ गई है, और रैंक अराउंड 600 है आउट ऑफ 22,000 नॉन फीटर में बात करें तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।